Hi, Namaste, good evening. Okay, so we've started a live video. Let me see. Uh, Part Sony, hi. Right, Neet, Divya, कैसे हो? मैं ठीक हूँ पार्थ, आप कैसे हो? Me to the rock, Dinesh, we should be Himanshi, and okay. Bushra Khan, Sonam Sidana. Hi Sonam, and Unaiza. Sonam, good to see you here. Rimpy, Dimpy, Jim, wow. Mongia Sharma, Jatinder, आप लुधियाना से हैं. Patsuni, you're looking cool, ma'am. Thank you, yo. मतलब दो बच्चों के बाद किसी को ये सुनने को मिला है कि you're looking cool तो अच्छा लगता है. Okay. Sony, Jenul, Satish, Dr. Sachin Madan. Hello sir, how are you? Sapna Yadav, Kiran, looking pretty. Thank you, Kiran, so much. Actually, beauty is in just the eyes of you. Okay. Hi, Manu Rock. Thank you. B2. Hi, I'm Shivani. All right. Okay. So, you know, this is Ask Shreya. Need your help in terms of suggestions about nutritional course. Yes, sure. But for now, Sonam Sidana, you're looking so young. Thank you. So that reminds me that I'm growing older, huh? Okay, I take it as a compliment though. Right. How should I, 15 years old? Okay, right. We should start our session. This is Ask Shreya without wasting time because I'm going to take many questions today. Dairy girl, hi ma'am, looking fab. Thank you. Happy to receive your diets. I lose 3 kgs in a week. Jitinder, thank you so much, and thank you for acknowledging that. Coolest mom and a great dietitian. I love you, Zaira. Thank you. मैं ठीक हूँ. फहीम, आप कैसे हैं? जी प्रीत, thank you. Oh my god, I like your dimples. Oh, thank you. Right. Manu, hi. Deepak, hi. Alright, we'll start with the questions. Okay, so if you guys need a pen and a paper, please keep that with you. और जो आपको points लगे, you can always jot it down ताकि वो आपको कहीं ना कहीं help करे. How to lose belly fat? My weight is 50 kgs, age is 25 and height is 5'3". Shaz Samreen, ये जो मैं questions ले रही हूँ अभी Instagram से ले रही हूँ. Once I finish this, your name tell. Jotham, hi. This is dietitian Shreya Jotham. Looking for postpartum diet by lactation. Sure. मैं क्वेश्चंस अभी आपके लूँगी आस्क श्रेया, लेकिन जो पहले आए हुए हैं वो हम लोग पहले आंसर करते हैं. और इनकेस अगर आपका आंसर इन क्वेश्चंस में आपको मिल जाता है, आई विल बी ग्लैड. सो किसी ने पूछा है शाह समरीन ने कि उनको बेली फैट लूज करने क्या करें. आई ऑलवेज से कि बेली फैट इट कैन बी अ रीज़न. इट इज़ रीज़न ऑलवेज. मतलब आपका डायग्नोसिस क्या है. वेट गेन and inflammation, water retention, it is all the symptom. Disease is something else underlying. So वो disease क्या हो सकता है. अब इनका जो belly fat है वो हो सकता है fatty liver की वजह से हो, post pregnancy हो, constipation की वजह से हो, या gut leaking की वजह से हो, metabolism slow down हो सकता है, diabetes की वजह से हो सकता है, या फिर insulin resistance की वजह से हो सकता है. So पहले आपको diagnosis समझना ज़रूरी है. Mostly Indians में fatty liver की वजह से fatty liver होता है. आई मीन बेली फैट होता है. सो आपको बेली फैट अगर है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि SGOT SGPT आपका कितना है. अल्ट्रासाउंड अगर फाइब्रो स्कैन आपने कराया तो वो हमें ईजी हो जाता है. बट फॉर लूजिंग एनी काइंड ऑफ बेली फैट, बी इट अ फैटी लीवर, बी इट अ पोस्टपार्टम बेली फैट, सो उसके लिए वन नीड्स टू हैव हाई प्रोटीन डाइट. हाई प्रोटीन इन द सेंस के अपने डाइट में जो भी आप चीज़ें खा रहे हो, द मैक्सिमम कैलोरीज शुड कम फ्रॉम द प्रोटीन. आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ठीक है, लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप अपना शुगर का इंटेक बंद कर दीजिए. वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए. डाइट में हाई फाइबर रखिए. और प्रोटीन जैसे कि एग्स या टोफू या फिर सोए, अगर आप सोया नहीं खाते हो, थायराइड पेशेंट हैं, या फिर आप
आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छा नहीं आया है, तो इनके सब आप सोया नहीं खाते तो न्यूट्रिशनल ईस्ट आप ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। किनवा ले सकते हैं, ज्वार, एमरेंथ, इन सब में, एमरेंथ मतलब चुलाई। सो ये सब चीज़ें अगर आप अपने डाइट में लेंगे, वीट को कट डाउन कर देंगे तो बेली फैट बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। और पोस्टपार्टम बेली फैट के लिए देयर इज अ बेल्ट हमेशा पहन के रखें, क्योंकि 9 महीने जब एक लेडी बच्चे को अपने स्टमक में रखती है तो स्किन लूज हो जाती है। सो आप लोगों को बेल्ट हमेशा पहन के रखनी चाहिए, सिर्फ खाना खाते हुए उतार दीजिए, अदरवाइज बेल्ट पहन के रखें, सोते हुए उतार दें, उससे आपके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे। और कार्डियो की बजाय, कार्डियो आप जो करते हैं दैट्स फाइन, बट आई थिंक आपको योगा, आसनास या ऐप की एक्सरसाइजेस उस में करना चाहिए। टमी को टक इन रखना चाहिए, सोडियम को कट डाउन रखें, और वाटर रिटेंशन हो जाता है स्टमक में, इसीलिए अपना मिल्क का इंटेक, हम लोग कई बार क्या करते हैं, हम लोग कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के खाना शुरू कर देते हैं। जितने आप पैकेट वाली चीज़ें लेकर आएंगे जिसमें हिडन सोडियम और शुगर होता है, उससे आपको बेली फैट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सोने से 2 घंटा पहले आप कुछ भी ना खाएं, इनफैक्ट 3 घंटा पहले कुछ भी ना खाएं, तो आपका स्टमक फैट नहीं होगा। प्लीज़ रिमेंबर वन सेइंग, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग and lunch like a layman, common man, dinner like a poor. So अगर आप ये रूल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो बेली फैट है वो नहीं होगा। कीप योर सेल्फ एक्टिव। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाउ कैन रिड्यूस, अच्छा हाँ, बेली फैट कई बार प्रोलैक्टिन बड़ा होता है लेडीज़ का, तभी भी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तभी भी होता है। सो आपको पहले डायग्नोसिस, मैं यहाँ पे जनरल टिप्स आज ज़रूर दे रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं है, पर मैं हमेशा आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि जनरल टिप्स आप सुन लो, लेकिन आपके लिए क्या है, आपके डायग्नोसिस के हिसाब से आपका डाइट होना चाहिए। आप यूट्यूब पे या गूगल पे आजकल इतने चैनल्स देखेंगे जहाँ पे ऐसा लिखा होता है आप 3 दिन में बेली फैट को कम करें, आप ये काढ़ा पिएं, ये करें, वो करें। सो ये सब जनरलाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड, हर एक का डायग्नोसिस अलग है। फैटी लीवर का डाइट अलग, पोस्ट प्रेगनेंसी का डाइट अलग। आपका फैट इसलिए बेली का था शायद गट लीकिंग हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन, IBS ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसके लिए अलग अलग होता है। हाउ कैन रिड्यूस माई फेस फैट, स्पेशली डबल चिन। डबल चिन के लिए देयर इज दिस एक्सरसाइज विच आई ट्राई टू डू, या च्युइंगम आप खाइए, इससे जो आपका डबल चिन है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट आई थिंक शुगर को कट डाउन करके, और जब भी आप फैट की बात करते हो, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फ्रूट्स ऑल्सो। फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज रहता है। सो अगर आपको चाहिए कि जल्दी से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले और आप थोड़ा सा फैट लूज करो, सो ट्राई हैविंग मोर ऑफ सैलड्स फ्रूट्स के कंपैरिजन में। सो दैट विल गिव यू अ क्विक वेट लॉस, बी इट ऑन फेस, बी इट ऑन द अपर बॉडी। पर सिर्फ फेस का फैट नहीं, बॉडी को नहीं पता कि ये सिर्फ फेस का फैट है। आप जब खाना खाते हैं तो आपके पूरे बॉडी में रिएक्ट करता है। पर डेफिनेटली आप स्वेट थोड़ा करें, और पॉप्सिकल्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं फेस के, वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक अभी डबल चिन के लिए दिखाया, एक पॉप्सिकल एक्सरसाइज कहते हैं, ऐसे कुछ फेसेस होते हैं वो आप कर सकते हैं। मेरा कलर डल हो रहा है। अनियान का ये क्वेश्चन है, जब मेलानिन सिक्रीशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, या हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, या हमें स्किन का कोई इशू होता है जैसे एक्जिमा वगैरह, तब हमारे स्किन का कलर चेंज होता है। सो अगर आपका मेलानिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो उसमें आई डोंट थिंक हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। आपका और कुछ मेडिकल कंसर्न इसमें नहीं होना चाहिए। आप एक बार डर्माटोलॉजिस्ट से दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि फेस का फैट या मतलब कलर कोई बाहरी कोई रीज़न है, जैसे कि आप सन में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, टैनिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका स्किन का कलर चेंज हो रहा है तो पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रहा होता है, मेलानिन सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा होता है, उसके लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। बाकी जो हम कॉस्मेटिक चीज़ें कहते हैं, जैसे कि लाइकोपीन होता है टमाटर में, वो अपने स्किन पे लगा लीजिए, उससे आप गोरे हो जाएंगे, वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, वो बिल्कुल ट्रुथ है। आप अपर तो चीज़ें ज़रूर करें जो जैसे एप्लीकेशन के लिए, जैसे लेमन जूस हो गया, पोटैटो जूस हो गया, टमेटो जूस हो गया। टमेटो जूस में लाइकोपीन बहुत अच्छा है, वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, वो आप लगा सकते हैं। बट एज बीइंग क्लिनिकल डाइटिशियन मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ का सिम्टम का डायग्नोज पहचानना चाहिए। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क क्यों हो रहा है, मेजरली पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद लोगों का होता है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से होता है। आपके ब्लड टेस्ट आप कराइए। मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक सजेशन है, हर 6 महीने के बाद, इनकेस अगर आपकी एज 35 अबव है, अगर आपके बच्चे हैं 2 साल के, तो उनका एक बार ज़रूर ब्लड टेस्ट होना चाहिए, साल में एक बार।
इनकेस अगर आपको उनमें कुछ लग रहा है कि एक्टिव कम है या फिर ब्रेन अच्छा नहीं है, IQ अच्छा नहीं है, अगर आपकी एज 35 से अबव है तो 6 महीने में एक बार ज़रूर कराएं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है या फैटी लीवर है तो अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ और उससे आप अपने सिम्टम को रिलेट कर पाएंगे कि अगर किसी का स्किन ब्लैक हो रहा है तो हो सकता है कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ रही हो, आपका प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो रहा हो, आपका मेलानिन सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा हो। सो उस केसेस में क्या चीज़ें काम आती हैं? हैप्पीनेस। यू शुड एक्चुअली गेट अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह आप कर सकते हैं। ओके अभी मेरे को शोना शर्मा ने बोला है कि आई लव योर स्पेशल डार्क चॉकलेट। थैंक यू सो मच शोना। डार्क सर्कल्स के लिए बताइए डॉक्टर तृप्ति। राइट, सी डॉक्टर तृप्ति, डार्क सर्कल्स ज़रूरी नहीं है कि B12 डेफिशिएंसी हो या आपको किसी डाइट से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी हो सकता है आज मैं बहुत वरिड हूँ, आज मैंने बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम किया, आज आपको मेरे डार्क सर्कल्स दिखेंगे। सो इसमें एक थिन कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। सो ज़रूरी नहीं कि ये डाइट से रिलेटेड हो, आपकी थकावट, आपका स्ट्रेस, आपका स्क्रीन आपने कितना देखा। और मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा डैब करती हूँ ऐसे, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन के लिए थोड़ा रोटेशन कर सकते हैं। और हेड स्टैंड, अगर आप हेड स्टैंड नहीं कर सकते तो अपने बेड पे ही थोड़ा सा सिर को ऐसे ऊपर करिए, उससे ब्लड फ्लो जो है आपका यहाँ तक आएगा। सो क्योंकि हम लोग हमेशा ग्रेविटी फोर्स में रहते हैं 24 घंटे। सो अगर आपको ठीक होना है, आपको तंदुरुस्त होना है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं चाहिए, एंटी ग्रेविटी ज़रूर जाना चाहिए। सो हेड स्टैंड या इन्वर्जन जो मैं अपने ये एरियल योगा में लोगों को कराती हूँ वो भी आप कर सकते हैं। सो गागा लाइन फैमिली, लव यू अलॉट, लव यू सो मच। PCOD ट्रीटमेंट गरिमा मैं अभी ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा है फूड्स टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। तस्नीम, मैंने पहले एक बहुत लंबा वीडियो किया था ब्लड प्रेशर के ऊपर कि बेसिकली जब हमारे डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं रहता है तो हमें ब्लड प्रेशर होता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलता तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक इनमें काफ़ी फ़र्क आता है। सो ब्लड प्रेशर के लिए आप कौन से फूड्स खाएं जिससे आपको ऑक्सीजन अंदर अच्छे से मिले, आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। सो कैफीन डेफिनेटली आपको नहीं बहुत ज़्यादा इंटेक करना चाहिए, अल्कोहल का इंटेक, सॉल्ट का इंटेक, और डेयरी जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपका मिल्क, पनीर, इन सब में भी हिडन सोडियम होता है। सो जितना ज़्यादा आप इसको लेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। सो ब्लड प्रेशर के लिए जब आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है तो उसके बहुत सारे और अंडरलाइंग कॉजेज़ होते हैं। अब वो अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? किसी को ब्लॉकेज हो कहीं पे भी, किसी भी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है, वो एक रीज़न हो सकता है। कोई एन्यूरिज्म कोई एक रीज़न हो सकता है। आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपका कोई फूड, आपका डायबिटीज़, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ब्लड प्रेशर अपने आप में बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी गलत है। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो जा रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके फेरेटीन्स कम है, आपका HB कम है। सो ब्लड प्रेशर कम होने का भी एक और रीज़न है। सो ब्लड प्रेशर को कैसे आप मॉनिटर करें? ब्लड प्रेशर अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टेंटली आपका लो जा रहा है, सो हो सकता है कि आपके डाइट में आपका सोडियम, आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों। पर उसके अलावा भी एक रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका गट लीकेज है या आपको कोई और फेरेटिन्स की कमी है, या कई लेडीज़ होती हैं उनको फाइब्रॉइड है, या फिर और एक कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। ग्रीन टी आजकल बहुत लोग पीते हैं। सो मेजरली आजकल ग्रीन टी फैशन में आने की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज अप डाउन रहता है। और आजकल ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में आए हैं जैसे कि आपका रेड बुल या और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो हम लोग पता नहीं क्यों लेते हैं, और एक हाथ में आप कहीं पे भी जाओगे कि एक स्टेटस सिंबल बन जाता है, एक बियर पकड़ा हुआ होता है या एक वो एनर्जी ड्रिंक पकड़ा हुआ होता है, या फिर ग्रीन टी हम लोग ये दिखाने के लिए कि वी आर हेल्थ कॉन्शियस। सो हमारे डाइट्स में आजकल कैफीन बढ़ गया, टेनिन बढ़ गया, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बढ़ गए, और आजकल ऐसा मैंने बहुत लोगों में ये सुना है हम लोग कैलोरी कॉन्शियस हैं एंड वी टेक डाइट कोक। सो कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सोडाज, ये भी हमारे बीपीज को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। अगर आपको बीपी कंट्रोल में रखना है, सो मेरा एक आपके लिए डाइट सजेशन है। अगेन जैसे मैं हर एक अपना क्वेश्चन को एंड करूंगी विद द डाइट टिप, वो आप हमेशा नोट करते रहिए। अगर आपको बीपी कंट्रोल में रखना है या अगर आपको हेल्दी रहना है, एनीमा इज द थिंग। हफ्ते में एक बार ज़रूर एनीमा करें, उससे आपके पेट के आसपास जितना भी गंद है,
अब लोग कई लोग बेली फैट के लिए पूछ रहे थे, ये आप एनीमा भी कर सकते हो। सो ओवर द टाइम पीरियड हमारे बॉडी में, हमारे गट के आसपास एक टार जमा हो जाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। एनीमा जब हम करते हैं तो उससे ना माइग्रेन होता है, ना ब्लैक कॉम्प्लेक्शन होता है। अगर इन केस आपका उस वजह से आप हेल्दी रहते हैं, क्लेंजिंग हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाता है, बीपी आपका बहुत अच्छा रहता है। और उसके अलावा जो हम सबसे बड़ी चीज़ जो भूल जाते हैं, हम डाइट की बात करते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, पर आप में से बहुत कम लोग हैं जो ब्रीदिंग की बात करते हैं। सो ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, स्ट्रेस या फिर हार्मोन्स अपसेट होना, सिंक्रोनाइज ना होना, उसका कहीं ना कहीं रीज़न हमारा राइट ब्रीदिंग टेक्निक को ना फॉलो करना भी होता है। सो अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रीदिंग को एक्चुअली कभी फोकस ही नहीं किया, सो उनके लिए ये नेरियल योगा मेरे पास है, आप उसमें भी इनरोल करवा सकते हैं, सो दैट वी कैन लर्न दैट ब्रीदिंग पैटर्न। नेचर ने ब्रीदिंग, इनहेल आउट, एक्सहेल, वो सब करा था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अब बस एक्सरसाइज करके कार्डियो को मुंह से बस हवा एक्सहेल करते हैं। सो इनहेल एंड एक्सहेल अगर हम लोग राइट काइंड से करें तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। राइट श्वेता मैम, मेरे लेग्स में बहुत पेन रहता है ऑन द बैक साइड ऑफ लोअर लेग्स, पिंडलियों में भी, व्हाट शुड आई डू? श्वेता, लेग्स में पेन रहना, पिंडलियों में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहने का एक तो रीज़न होता है कि आपका लॉन्ग आवर स्टैंडिंग है, वो एक बात अलग है। लेकिन इनकेस अगर आपका B12 कम है, फेरेटीन्स कम है, विटामिन D लेवल्स कम है, सो आप इनको पहले चेक कराओ, उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स या मुझे टेस्ट भेजो, मैं आपको सप्लीमेंट्स एडवाइस कर पाऊंगी कि खाने में आप क्या खाएं, और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। बट अदरवाइज जैसे मैं आपको अगर मेरा बताऊं, मुझे लेग्स में तब दर्द होता है जब मैं जैसे लैक्टेशन पे हूँ और मैं अपने सप्लीमेंट्स पूरे ना लूँ, मतलब कैल्शियम मैं अच्छे से ना लूँ, या मेरा डाइट किसी दिन अच्छा ना रहे। सो मैग्नीशियम आपके डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मल्टीविटामिन्स की बात करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं मेरे पास आते हैं, मैम हम एमवे का सब मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, या हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, हमने मल्टीविटामिन स्टार्ट कर दिए किसी भी कंपनी के। आपको हो सकता है कि विटामिन की ज़रूरत ना हो, आपको मिनरल की ज़रूरत हो। सो कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हुआ या फिर बस वैसे ही पॉप इन, उनको आदत है, कोई भी गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जाके अच्छे अच्छे महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीद के लाते हैं। पर हो सकता है कि आपको डेफिशिएंसी, आपको दर्द है मसल्स में, उसके लिए आपको मैग्नीशियम जिंक चाहिए था, या आपके माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, तो उसके लिए आपको कोएंजाइम Q10 चाहिए था, या आपको सिंपली अश्वगंधा या ब्रह्मी चाहिए था। पर आप महंगे महंगे सप्लीमेंट्स ला के मल्टीविटामिन्स अपने लीवर को लोड करते हो, लीवर टॉक्सिसिटी होती है, और आपको पता भी नहीं किस चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन आप बॉडी को बेकार में ही सब चीज़ें दे रहे हो। तो ओवर जब आप चीज़ें ले लेते हो तो उसकी वजह से भी आपके लीवर पे इम्पैक्ट आता है, उसकी वजह से वेट पुट ऑन होता है, वेट पुट ऑन होने की वजह से लेग्स में दर्द रहता है। सो प्लीज़ अगेन, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड एबनॉर्मल वेट, दीज आर द सिम्टम्स। डायग्नोसिस आर समथिंग एल्स। सो आप अपने डायग्नोसिस को सबसे पहले पहचानिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना B12, विटामिन D, ये सब चीज़ें ज़रूर टेस्ट करवाइए। मनप्रीत, हाय, राइट, दैट्स फाइन मनप्रीत, ओके, राइट। श्वेता ने पूछा है कि किसी यंग बॉय के लिए 21 साल में हेयर फॉल का कोई डाइट प्लान है। देखिए, हेयर फॉल एक बहुत लंबा टॉपिक है। आप लोग सुनना चाहते हैं हेयर फॉल पे, बिकॉज मैं चाहूँगी कि आप एक चाहे नॉलेज लेके जाइए, लेकिन उस पर मैं अच्छे से बात करूँ। सो आप चाहते हैं कि मैं हेयर फॉल पे बोलूँ, क्योंकि मैंने वेट पे बोल दिया, मैंने फैटी लिवर पे बोल दिया, स्किन पे बोल दिया, PCOD में कवर करूँगी अभी। सातविश, मैं आपके ये क्वेश्चंस लूंगी। क्या आप चाहते हैं, आप में से बहुत लोगों को हेयर फॉल हो रहा होगा, आप चाहते हो मैं हेयर पे बात करूं, क्योंकि अभी किसी का क्वेश्चन हेयर पे आया है। अदरवाइज मैं उस टॉपिक को कट शॉर्ट कर सकती हूँ और आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकती हूँ थोड़े थोड़े उसमें। पलविंदर का येस आया है, ओके। एंड एनीवन एल्स, डू यू वांट मी टू टॉक ऑन हेयर फॉल? कीर्ति, येस, ओके। इंस्टा पे आई एम गेटिंग येस येस। सतविश, येस मैम प्लीज, ओके। Palvinder, yes, okay. So constipation, right, please save this video, okay, right, I will save this video. Palvinder, बोलो, अभी बोलती हूँ, राइट। चलिए हम लोग पहले हेयर फॉल पे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे अभी ठंड है
एस्थमा, जहान, definitely asthma is a much needed topic. I'll make a video, and I've made a video and that is there on my YouTube channel. आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, प्लीज़, मेरा हमेशा ये रहता है कि whatever I know, मेरे अंदर ऐसा एक बच्चा रहता है हमेशा कि जो चीज़ मुझे होता है, मेरे को होता है फटाफट से आप लोगों को बता दो. सो मैंने YouTube डायलिशन श्रेया YouTube चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब करें. मैंने उसमें PCOD, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और पल्मनरी COPD का भी मैंने उसमें वीडियो डाला हुआ है. सब डाइट प्लान है. ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी फोकस ऑन हेयर फॉल फर्स्ट, देन आई विल कवर द टॉपिक एस्थमा. उसके बाद आपके जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर ईच एंड एवरी. अगर कोई रह जाएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं रात को बैठ के आपको इनबॉक्स कर दूं या फिर मैं यहाँ पे रिप्लाई कर दूं. राइट, वी विल स्टार्ट विद हेयर फॉल. सी, हेयर फॉल क्या है? बेसिकली हेयर क्या है? हेयर एक फॉलिकल है. यहाँ पे एक फॉलिकल्स होते हैं हमारे, और वो भी ब्रीथ करते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन जाता है, उसको भी नरिशमेंट की ज़रूरत है. पर पहले क्या होता था? पहले लोग बोलते थे कि बहुत सारा ऑयल लगाओ और उससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी. लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा लगाने से, या हम लोग बहुत टाइम जब अपने ऑयल को रखते हैं, सो यहाँ पर वो जो सेल्स हैं, जो वो पोर्स हैं, वो क्लॉग हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जिससे जो हमारा यहाँ पे जो पोर्स हैं वो एक्सेल इनहेल नहीं कर सकते, और उसकी वजह से हेयर फॉल होता है. सो जो लोग पूरा दिन अपने बच्चों को ऑयल लगा के छोड़ देते हैं और टाइट उनको रबर बैंड्स लगा देते हैं, सो पहला हेयर फॉल यहाँ से होता है. आपके फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं. सो जो लोग तेल लगा के रखते हैं वो ना लगाएं. इनकेस अगर आपको हेयर फॉल है, वॉश करने से पहले आप चाहे थोड़े टाइम के लिए, अगर आपको लगता है कि ऑयलिंग की ज़रूरत है, तो कॉटन से हल्का हल्का लगाएं. कैस्टर ऑयल, अलसी का ऑयल, ऐसा आप लगा सकते हैं. कॉटन से लगा के उसके बाद आप बहुत केयरफुली, बहुत लाइट हैंड से आप उसको वॉश ऑफ कर सकते हैं. अब हम वॉश ऑफ की बात करें. आपने नंबर 1 पॉइंट लिख लिया. नंबर 2, वॉश ऑफ. आजकल जितने भी शैम्पूज मार्केट में आते हैं उनमें मैक्सिमम खुशबू ऐड की हुई होती है, केमिकल्स ऐड किए होते हैं हम लोगों को प्लीज़ करने के लिए, कंज्यूमर्स को प्लीज़ करने के लिए. सो आई मेक अ पॉइंट कि मेरे शैम्पू में चाहे खुशबू हो या ना हो, लेकिन इट शुड बी सल्फेट एंड पैराबीन फ्री. अब बहुत महंगे महंगे शैम्पूज मार्केट में है. 1500 रुपये की बॉटल इतनी सी होती है. या फिर हम लोग बहुत जब हम लोग सैलून्स में जाते हैं तो वहाँ पर वो रेकमेंड करते हैं और उनका एक टारगेट रहता है कि आप लोगों को पिच करें महंगा शैम्पू खरीदने के लिए. सो यू डोंट नीड टू बाय एक्सपेंसिव शैम्पूज फॉर दैट. मेरे दादी के मेरे ख्याल से आई थिंक 55 या 60 ईयर्स तक बिल्कुल ब्लैक बाल थे. एंड आई एम एक्चुअली सेइंग अ ट्रुथ हियर. मेरे दादी के बिल्कुल ब्लैक बाल थे. रीज़न क्योंकि वो घर पे एक शैम्पू बनाते थे, शिकाकाई, रीठा, आंवला, ये सब मिक्स करके. आप लोग भी बना सकते हैं, वो इस शैम्पू यूज़ करें. जितना नेचुरल रहेंगे उतना बेटर है. इनकेस आप नहीं बना सकते तो एक फेन्यूग्रिक मेथी दाना का भी भिगो के पेस्ट बना के, ऐसे आप फेन्यूग्रिक का भी एक शैम्पू घर पे बना सकते हो. बिलीव मी, फेन्यूग्रिक के शैम्पू से अच्छा झाग भी आता है और बहुत अच्छी हेल्थ हो जाती है ओवर द टाइम पीरियड. अब आपका हेयर फॉल एक रीज़न था शैम्पूज की वजह से, एक रीज़न था ऑयल की वजह से एक्सेसिव, जिसकी वजह से आपके पोर्स नहीं ब्रीथ कर पाते थे. थर्ड रीज़न होता है स्ट्रेस. डेफिनेटली स्ट्रेस. आपको पता भी नहीं है कि स्ट्रेस क्या होता है. कई बार ओवर खुश हो जाना, या फिर किसी चीज़ को स्ट्रेस बॉडी में फ्री रेडिकल्स का आना भी होता है. यानी कि जब हम लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके, या फिर ओवर एक्सर्ट करते हैं अपने आप को 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 10,000 स्टेप चलने का एक टारगेट, 20,000 स्टेप चलने का एक टारगेट, तब भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है. दैट इज अगेन अ कॉर्टिसोल, दैट इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, जो आपका वेट भी पुट ऑन कर सकता है, आपको स्ट्रेस में लेके आ सकता है. सो बहुत ज़रूरी है ब्रीदिंग को फॉलो करना. इनकेस अगर आपको स्ट्रेस है तो हेयर फॉल होता है. सो चाहे आप कितना मर्जी डाइट अच्छा करो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को काउंटर नहीं करोगे, स्ट्रेस से आपका डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, और आपका बॉडी में कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्लड ही है जिसमें ऑक्सीजन है. वो ऑक्सीजन आपके हेयर फॉलिकल्स में भी जाता है, पूरे बॉडी में भी जाता है. सो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपका हेयर फॉल भी करता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीज़न जो आपको हेयर फॉल देता है. पर बहुत लोग उसको इग्नोर करते हैं और महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खाते हैं. नंबर 4th रीज़न है आपका घर पे पानी. अब हम क्या, जैसे कि सपोजिंगली मैं इस टाइम पे चंडीगढ़ में नहीं हूँ. चंडीगढ़ का पानी फिर भी अच्छा था, लेकिन जब मैं अपने मदर इन लॉ के घर जाती हूँ, अपने हस्बैंड के घर जाती हूँ, वो लोग पंजाब में रहते हैं. पंजाब का पानी जो एक स्पेसिफिक एरिया था वो हार्ड वाटर था. सो चंडीगढ़ में मैंने वाटर सॉफ्टनर लगवाया. अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर एक्चुअली जब मैंने TDS भी चेक किया वो 35 था सिर्फ,
और उसके अलावा भी यहाँ का पानी हार्ड वाटर नहीं है। दिल्ली में बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ पे हार्ड वाटर है। सो कई बार क्या होता है जब आप जगह बदलते हो, कई लोग बच्चे हैं ऐसे जो अपने पीजी में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, सो उनका पानी चेंज होता है और हम लोग रिलेट भी नहीं करते। पानी चेंज होने की वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं और थे, आप कहीं और आए हो और उसकी वजह से हेयर फॉल है, तो पानी भी आपका रीज़न हो सकता है। उसके लिए क्या करें, वाटर सॉफ्टनर लगाएं। वाटर सॉफ्टनर एक्सपेंसिव है, नहीं लगाना चाहते तो आपके घर में जो भी एक्वागार्ड है या आरओ है, ड्रिंकिंग वाटर से आप अपने हेड को वॉश करें, हेड बाथ लें। बिलीव मी, ट्राई दिस। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप नीम का पानी और उसमें अलसी डाल के पानी उबालिए और उसके बाद उससे हेड बाथ कीजिए। वो हार्ड वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होगा और आपको हेयर फॉल नहीं देगा। छोटा सा रीज़न था देखो, पर हम लोग कई बार पहचानते नहीं हैं। उसके बाद आपका एक और रीज़न आता है, वो रीज़न है HB कम होना। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, B12 कम है, अब हीमोग्लोबिन, B12, प्लेटलेट्स, B12, ये सब बेसिकली RBCs या ऑक्सीजन, यही सब दिखा रहा है। सो अगेन कम्स टू द ब्लड। सो अगर आपको ऐसी कोई भी डेफिशिएंसी है, B12, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन, तो आपका हेयर फॉल होगा। फिर चाहे आप शैम्पू चेंज करो, पानी चेंज करो, कुछ नहीं होगा। सो हेयर फॉल का भी एक डायग्नोसिस है। हेयर फॉल एक सिम्टम है कि बॉडी में आपको बॉडी अंदर से कुछ बता रही है कि श्रेया प्लीज़ मेरा ख्याल रखो। सो अब श्रेया ने अगर डायग्नोसिस ही नहीं किया और उसको सब कुछ ट्राई कर रही है तो वो गलत है। सो डायग्नोसिस को पहचानो कि क्या हो सकता है। हर एक सिस्टम पे पहले वर्क करो, पानी भी चेंज करके देखो। पहले सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट कराओ। अगर 6 महीने में आपने रिपीट कराया और उसमें कोई डेफिशिएंसी आई, आपके प्रोलैक्टिन बढ़े हुए हैं, तो फिर आपका हेयर फॉल ठीक हो सकता है। उसके अलावा और क्या रीजंस होते हैं, हमारा पिलो। कई बार जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं उनका जो फैब्रिक है वो नायलॉन है। सो आपका रबर बैंड है वो बहुत टाइट है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। सो आपका जो पिलो कवर है, वैसे तो पिलोज नहीं यूज़ करने चाहिए, पर अगर पिलो कवर आपका सिल्क का हो, सो सिल्क आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ये कुछ रीजंस है आपके हेयर फॉल होने की वजह से, मतलब रीजंस है। बाकी तो कीमो या फिर ये सब चीज़ें हैं वो आपको मालूम है कि बाद में हेयर फॉल होता है, पर ये वाले कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हेयर फॉल है। पर अब करें क्या, डायग्नोसिस पहचाना। इनकेस अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, सो अगर आप खाने के बाद इमीडिएटली ग्रीन टी पी लेते हो या चाय पी लेते हो तो आपको हेयर फॉल होगा। खाने के बाद आधे घंटे के बाद आंवला जूस या लेमन वाटर, विटामिन C आप पिए, उससे आपका आयरन एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में। और दिन में एक बार एक ग्रीन स्मूदी ज़रूर लें। ग्रीन स्मूदी जैसे कि आपकी पालक, मिंट और कड़ी पत्ता, और आपके वहाँ पे क्या सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रीन लीव्स आते हैं, कई बार चुलाई मिलता है हम लोगों को, चुलाई का साग, वो आप ज़रूर लें। अगर आपके स्मूदीज़ नहीं आप बना सकते, सूप बना सकते हैं। ग्रीन सूप आपके डाइट में ज़रूर होना चाहिए, पालक, बीटरूट, ऐसा सूप। आपको हेल्दी रहना है, सो रेनबो, विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, एक आपके पूरे दिन में ऐसा कलर ज़रूर आना चाहिए। मैं भी जब अपने डाइट में बच्चों को या कुछ खाना देती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि इनके प्लेट में, इनके पूरे दिन के मील में ये विबग्योर जो कलर है वो गया है कि नहीं। सो रेनबो प्लेट अगर आप रखेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। सो हेयर फॉल पे मैंने आपको ये कुछ चीज़ें बताई हैं। और उसके अलावा क्या, आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग नाउ। ओके, सो हेयर फॉल आई हैव कवर्ड। और उसके अलावा किसी ने पूछा है कि बी कॉम्प्लेक्स रिच वेजिटेरियन फूड लिस्ट। बी कॉम्प्लेक्स, ऑल राइट। देखिए, बी कॉम्प्लेक्स हमें चाहिए ताकि RBCs जो हैं वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके, सिंथेसिस हो सके उसका। और B12 जो विटामिन है, बेसिकली बी विटामिन बहुत तरीके के होते हैं, राइबोफ्लेविन या थायमीन, ऐसे बहुत तरीके के बी विटामिन होते हैं। लेकिन अभी किसी ने मुझसे B12 के लिए पूछा है। B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। मैं यहाँ पे आपसे एक मज़ेदार बात करना चाहूँगी। गागा को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। राइट, सो मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। मैं अभी जैसे गोवा में आई, सो यहाँ पे मेरी जो मेड है वो खाना बनाती हैं। तो मैंने क्या देखा, एक दिन उन्होंने जो मेरे चंडीगढ़ में मेड्स थे उनको मैंने सब अच्छे से ट्रेन किया कि कैसे खाना बनाते हैं या कैसे आप प्रोक्योर करते हो विटामिन C को, विटामिन B को। लेकिन जब यहाँ पर मैं आई तो मैंने एक वीडियो भी की थी, अगर आपको याद हो, मेड
फॉर मेड ऐसे करके आप अपने डेफिशिएंसीज के लिए या बीमारी के लिए कहीं ना कहीं रीज़न जो किचन में खाना बनाते हैं उनको भी दे सकते हो। सो कई बार हम लोग किचन में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें बीमारियां हो जाती हैं, डेफिशिएंसीज हो जाती है। मैंने अपने मेड को देखा, रात को मैंने राजमा भिगोए या सफ़ेद चने, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ भिगोया था मैंने रात को। सुबह उन्होंने आके वो पानी कुकर में से फेंक दिया और उसको फ्रेश पानी के साथ उबाला। अब आप मानोगे मेरा वो वाइट चना या राजमा अपने बच्चों को देने का मन ही नहीं किया, क्योंकि जब मुझे वाइट चना या राजमा बच्चों को देना था तो मेरा कहीं ना कहीं पॉइंट ये था कि लेग्यूम्स में, बीन्स में बहुत अच्छा बी वाइटामिन होता है, और क्योंकि कई ऐसे डेज होते हैं जहाँ पे हम बच्चों को नॉन वेजिटेरियन नहीं देते। सो उन दिनों में मैं बीन्स देना प्रेफर करती हूँ बच्चों को। और अगर आपने बीन्स में से रात भर का पानी फेंक दिया तो बी वाइटामिन वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है, और पानी फेंका तो मतलब सारा बी वाइटामिन चला गया। सो ये गलतियां लोग करते हैं। उसके अलावा मेरी मेड ने एक और चीज़ की, उन्होंने पालक कट किया या फिर बीन्स कट किए या फिर आलू कट किया, पहले छिलका उतारा, उसके बाद कट कर दिया, उसके बाद उसको भिगो के रख दिया 5-10 मिनट के लिए, या फिर कटिंग करके धोने शुरू कर दिया। बी वाइटामिन वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन है, और मेजरली लोगों को बी वाइटामिन इंडिया में क्यों हो रहा है, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि B12 जो है वो नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में आपको ज़्यादा मिलता है, जैसे अंडे में या मीट्स में या चिकन में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके स्पिरुलिना में, आपके पालक में, बीन्स में, आपके सीरियल्स में, बार्ले में, जौ में बहुत अच्छा B12 विटामिन है। न्यूट्रिशनल ईस्ट, एमरेंथ, ऐसी कितनी चीज़ें हैं हमारे वेजिटेरियन खाने में भी जिसमें आपको B12 मिलता है। लेकिन इंडियंस में ज़्यादातर B12 डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि हमारा कुकिंग का जो मेथड है कहीं ना कहीं आजकल हम उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, खुले में खाना पकाते रहते हैं। गाजर का हलवा बहुत हेल्दी है, लेकिन कभी आप उसको देखो, गाजर में भी जो बी विटामिन है, कितनी देर हम गाजर को पकाते रहते हैं कि खोया पक जाए, दूध पक जाए, तो उसमें B12 गया, या वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, या धोने के टाइम पे गाजर कटिंग किया, उसके बाद उसका जूस निकाल दिया, उसके बाद पराठी बनाई। सो हम लोग चाहे उतने वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, पर हमारा कुकिंग का जो मेथड है कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। सो इसलिए B12 की डेफिशिएंसीज हमें हो जाती हैं। सो चाहे आप वेजिटेरियन खाना खाइए, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए कि आप सब्जियों को जो भिगो रहे हैं, जो रात को अच्छे पानी से साफ करके उसके बाद भिगोइए, उसी पानी को यूज़ कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, चावल को ये सोच के कि उसमें से सारा स्टार्च निकाल दो, स्टार्च यानी कि वो सब पाप है। सो पहले अच्छे से रगड़ रगड़ के चावल को धोते हैं, उसको उबालते हैं, फिर पानी फेंक देते हैं। तो उसमें से सिर्फ आपने स्टार्च ही नहीं निकाला, आपने B12 विटामिन या बी विटामिन भी निकाल दिया। सो इंडियन कुकिंग में ओपन में कुकिंग करना, आधा आधा घंटा तक उसको पकाना, पहले तरी ज़्यादा हो गई, फिर किसी को अच्छा दिखाने के लिए तरी को खूब गाढ़ा कर देना। सो जब तक हम लोग ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, हम लोग डेफिशिएंसीज में आते रहेंगे, और डेफिशिएंसीज इतनी होगी फिर हम लोग वो सप्लीमेंट्स खाएंगे। सो उससे बेटर है कि हम लोग अपने कुकिंग को भी पहले देखें कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कुकिंग को अब्यूज़ तो नहीं कर रहे, ज़्यादा देर तक पकाते हैं। और ये वीडियो अगर हो सके आप इनसे अगर कुछ सीख रहे हो, सो जो भी आपके लिए खाना बनाता है किचन में, ये ज़रूरी नहीं कि मेड, बहुत बार मैंने अपने लोगों को भी गलतियां करते हुए देखा, अपने इन लॉज को या फिर बहुत लोगों को, तो मैं अपने मदर को भी कई बार मैंने गाइड किया है। सो इसीलिए लोग मुझे अपने किचन में नहीं खड़े होने देते हैं। मेरी मदर स्पेशली मुझे किचन से भगा देती हैं कि मैं हर बार टोकती हूँ, पर यही एक नुकसान है ज़्यादा पढ़े लिखे होने का। पर आई थिंक दिस इज़ वर्थ, अगर आप अपने बच्चों को अनहेल्दी नहीं देखना चाहते। इसीलिए जब B12 की डेफिशिएंसी होती है, आपको अल्सर्स हो जाते हैं, यहाँ से आपका माउथ कट जाता है। सो अगर बच्चों को हेल्दी खिलाना चाहते हैं, वो हेल्दी ज़रूरी नहीं कि महंगा हो, आपको पालक से भी उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा, चाहे आप वो केल के पत्ते महंगे ना खरीदें। लेकिन पालक को आप खुले में पका दोगे तो डेफिनेटली आपको सारा नुकसान होगा। सो आई थिंक हीरा का क्वेश्चन है, डाइटिंग के बिना क्या वेट लॉस हो सकता है। पहले तो मैं आपसे एक यहाँ पे एक और लंबा सा एक हमारा वीडियो चला जाएगा। डाइटिंग एक वर्ड नेगेटिव है। एमीबा या डॉग्स या कैट्स या फिर ह्यूमन रेस के अलावा जितने भी अर्थ पे क्रिएचर्स हैं, उन सब का डाइट फिक्स होता है। फिश का फूड अलग है, उनको पता है क्या खाना है। टाइगर का या कैट्स का या डॉग्स का, उन सबको पता है क्या क्या खाना है, वो उसी पे रहते हैं या अपने आप को ठीक कर लेते हैं। पर हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती हम वो खाते हैं, और फिर जब हम लोग हेल्दी खाने पे आते हैं हम उसको डाइटिंग बोल देते हैं। सो ऐसा नहीं है।
अगर आपका वेट पुट ऑन हुआ, सो मुस्कान, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन पहले, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्योंकि आजकल विंटर्स है, लोगों को मैक्सिमम हेयर फॉल हो रहा था, इसलिए मैंने लंबा एक जो वीडियो बनाया वो उस पर बनाया था। सो राइट, सो मैं आपको ये बता रही थी कि डाइटिंग नेगेटिव वर्ड नहीं है, आपको एक बॉडी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं, और जब हम लोग कैलोरीज को खाते भी है ना, हम लोग बस ये देखते हैं कि आज हमने 2 रोटी, 1 रोटी, 2 रोटी, 1 टोस्ट, 1 सीरियल ऐसा खाया। हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते कि मेरी रिक्वायरमेंट, मैं लेक्टेटिंग मदर हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की, प्रोटीन की, वाइटामिन की ज्यादा है, पर अगर मैं सिर्फ वो गेहूं खाऊंगी तो मुझे और नुकसान हो जाएगा। अगर मैं थायराइड पेशेंट हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे ग्लूटेन नहीं लेना है। सो हर एक का डाइट एक फिक्स्ड है। सो अगर आप मुझसे येस और नो में पूछे, नहीं, अगर आप अपने डाइट को ठीक नहीं करोगे तो आप अपने वेट पे काम नहीं कर सकते। अगर आप अपने डाइट को ठीक नहीं करोगे, सिर्फ जिमिंग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, 80% आपका डाइट है, अगर आप उसकी आर्ट को नहीं समझे, सो मैं ये भी नहीं कह सकती कि एनिमल्स नहीं, आई मीन वी कैन नॉट कंपेयर विद एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि एनिमल्स नोज बेटर देन अस। एनिमल्स को पता है कब कम खाना है, कब ज़्यादा खाना है। मेरे पास एक डॉग था, जब उसको लगता था कि उसका पेट खराब है, वो एक मील स्किप करते थे, या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाते हैं वो लोग खाना। सो बच्चों का भी ऐसा होता है, अगर आप छोटे बच्चों को फोर्स करें वो नहीं खाएंगे, उनका अपना एक एपिटाइट होता है, पर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हम अपने सिग्नल्स को डेड कर देते हैं, हम लोग टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग खाना शुरू कर देते हैं। सो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा डाइट का। और गीतांजलि का क्वेश्चन है, वी वांट टू लर्न हेल्दी कुकिंग मेथड्स। गीतांजलि, मैंने बहुत लंबा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप कोई भी नेम लें वीडियो का, मेरे सब यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोस कवर किए हुए हैं। देयर इज अप्रोक्सीमेटली 500 वीडियोस, देयर आर 400-500 वीडियोस ऑन द हेल्थ टॉपिक्स। सो आप वो हेल्दी कुकिंग का वीडियो उसमें भी देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, वो मैंने आपको बता दिया है। यमुना का क्वेश्चन है कि मैम 50 इयर्स के हैं, कुछ वेट लॉस करने के लिए बता दो। देखिए, अगर आपका मैंने एक वीडियो किया है वाई एम आई नॉट लूजिंग वेट, अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सो आप देखिए आपका विटामिन डी कम होगा, आपका थायराइड का कंडीशन होगा, या आपका जो डाइट है उसमें कार्ब ज़्यादा होंगे। सो आपको अपना डाइट चेंज करना होगा, या फिर अगर आप ओवर एक्सर्शन करते हैं सो उसकी वजह से भी आपका जो वेट है वो लूज नहीं होता है। और दैट्स इट आई थिंक। ओके, अगर आपके, अच्छा, आपकी मम्मा को हर्निया का प्रॉब्लम है, यमुना, कौन सा हर्निया है, उनको अम्बिलिकल है, कौन सा हर्निया है वो आपको मुझे स्पेसिफाई बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगी। थैंक यू इशफाक। पीसीओडी के लिए क्वेश्चन फिर से आया है यहाँ पे। पीसीओडी का मैक्सिमम लोगों ने पूछा है, गीतांजलि ने भी पूछा है कि पीसीओडी, KA.YRA ने भी पूछा है, AMH इम्प्रूव, राइट, ओके, स्पर्म डाइट, मसल स्पैज़म। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले पीसीओडी के बारे में बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपके और क्वेश्चंस के हम लोग आंसर मैं टाइप कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक दिस इज टेकिंग मोर ऑफ टाइम। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOS और सिंड्रोम आजकल देखने में ज़्यादा है, आजकल लोगों में ज़्यादा है, बट आई एम वेरी ग्लैड कि ये रिवर्सिबल है। नेबोथियल सिस्ट होता है, चॉकलेट सिस्ट होता है, सिस्ट के बाद एक फाइब्रॉइड्स भी होता है, एंडोमेट्रियम लेयर थिकनिंग या थिनिंग, एंडोमेट्रियोसिस, ये सब जो कंडीशंस हैं बेसिकली हम लोग फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हार्मोन्स भी अपसेट होते हैं। लेकिन अगर मैं पीसीओडी की बात करूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कुछ भी यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगी। मेरा होल्ड पीसीओडी में, PCOS, डायबिटीज़, इन सब में ज़्यादा है, और अगर आप देखें तो ये सब हार्मोन्स के ही कंडीशंस है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। सो बेसिकली PCOD, PCOS में इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है। सो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज़ है। सपोजिंगली मेरी डॉटर है, अगर उनके दादी को या उनके पेरेंट्स साइड पे या उनके फादर साइड पे या फिर मेरे साइड पे, मतलब शादी के मदर के साइड पे या फिर फादर के साइड पे अगर किसी को डायबिटीज़ है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाऊंगी कि शादी को चांसेस हैं टू गेट द PCOD। उनका वेट मैं मेंटेन कर लूँ, उनको बहुत ज़्यादा हार्मोन्स वाली चीज़ें ना खिलाऊं, जैसे कि दूध, ऑर्गेनिक दूध हो, या फिर मैं दूध ना दूं उनको,
ग्लूटेन उनके डाइट में कम कर दूँ, फ्रूट्स को कम कर दूँ, कार्बोनेटेड बेवरेजेस को कम कर दूँ, जो स्वीट योगर्ट मार्केट में आते हैं, कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स, ये सब चीज़ें जो आजकल बहुत ज़्यादा हाइपअप्ड हैं, वो मैं कम कर दूँ. सो पीसीओडी बहुत ईजी है रिवर्स करना. आप बस अपने शुगर लेवल को कम कीजिए. अब शुगर लेवल कैन बी अ माल्टोस कमिंग फ्रॉम द स्टार्च सीरियल्स, it can be a fructose coming from the fruits, it can be a sucrose coming from the sugar directly. So अपने sugar level सब और the lactose coming from the milk. Now what is the solution? Solution is to have more of proteins. और आजकल जो जैसे चिकन भी होता है वो एंटीबायोटिक लगाए हुए होते हैं, या फिर दूध होता है कई बार एंटीबायोटिक या हार्मोन्स वाला दूध होता है, हमें वो नहीं लेना चाहिए. सो पीसीओडी रिवर्स हो जाता है. दूसरा, पीसीओडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत इंक्रीज हो जाते हैं. रीज़न ये कि आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं. अभी भी बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक. अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो और आप क्या करते हो, डाइट को आप वैल्यू नहीं करते, आप जिमिंग करना शुरू करते हो. और जो एक्सरसाइज आपको नहीं चाहिए, सपोजिंगली मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपना टेस्टोस्टेरोन को और इंक्रीज करूं, जो कि पीसीओडी में होता है. सो मैं कोई मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं करूंगी, मसल बिल्डिंग या वेट्स नहीं करूंगी. मैं उसमें योगा करूंगी और वो भी ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ करूंगी ताकि मैं ठीक हो जाऊं. सो जब आप भी कोई एक्सरसाइजेस या जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको अपना पहले देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है, उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज को चूज करें. ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड योर स्ट्रेस लेवल्स वो आपको मेंटेन करना पड़ता है. और पीसीओडी सिर्फ पीसीओडी नहीं रहता है, उसके साथ भी और बहुत सारे कंडीशंस होते हैं. ओके, सो आई थिंक हमारा इट्स टाइम टू से बाय टू यू गाइज. बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन है, आई मेक श्योर आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन. आपको कल सुबह तक आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल जाएंगे. और बाकी बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट. जो मैंने कल भी बताया था, मेरे 6 सेंटर्स ओपन हो रहे हैं. हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, गोवा, मुंबई में भी और 2 क्लिनिक्स आ रहे हैं. गोवा में भी हमने क्लिनिक ओपन कर दिया कल से. इनफैक्ट हमारा गोवा में भी स्टार्ट हो जाएगा. सो ये 6 सेंटर्स हैदराबाद के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड दो. सो ये कल मेरे मीट एंड ग्रीट्स हैं. मेरे क्लिनिक ओपन हो रहे हैं, वो आप मेरे फेसबुक और इंस्टा पे देख सकते हैं. कहाँ कहाँ आप वहाँ पे मिल सकते हैं. एंड येस, आई एम कमिंग टू चंडीगढ़ ऑन 15th. अगर आप मुझे चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं, मिलिए. ये नेरियल योगा स्टार्ट हो गया, अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं. एंड इफ इन केस यू वांट टू हैव द पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, प्लीज कॉल मी ऑन 7307303835. Follow the diet. That is the ultimate solution. Bye.